بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone. A very good morning and a warm welcome. Honorable Director of Chennai Institute of Health Sciences, Multan, Dr. Hussain Abbas, the guest of honor, Syed Ali Hussain, our Honorable Principal, Dr. Mary Joseph, and the administrators, Dr. Asfar Khurshid, Dr. Hafza Rashid, and Dr. Arshad Tariq. I would also like to welcome our colleagues on the behalf of my college, Chennai Institute of Health Sciences. I am Nadia Qadi from third year, and here is Rita Fatma from third year. Education is the most powerful weapon that can change the whole world. Education is not preparation for life. Education is life itself. Investment in knowledge pays the best interest. Roots of education are bitter, but the fruit is always sweet. And Chennai Institute of Health Sciences believes that today's education is tomorrow's future of the child. We intend to own the inherent skills and personalities of the students. We make them globally competitive without burdening their brave, innocent minds. The need for college education is even more important now than it was before. Today, the cost of college education is so high that many of the young people are giving up their dreams to go into college. After spending a lot of time thinking about the beautiful shimmering image of the institutes, the stunning, beautiful and inspiration flaunts that Chennai Institute is now one of the largest growing community of the colleges, delivering best of their services to the students and therefore to the society. Now without wasting your time, we will start our day with the greatest name of Almighty Allah, who created the universe, who runs the rivers, who runs the lakes, who runs the clouds full of rain. We should be so proud when we shout it to Him out loud. Who sparkles stars in the sky. O Allah, you helped us to pray 5 times. We ask you to protect us against evils and crimes. To start the function with a recitation of Holy Quran, I would like to call Muhammad Bilal from first year. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا
حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. The one who is remembered on earth and on heaven, whose trust on God was as firm as mountains. I am talking about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I would like you to please put your eyes down in his respect, and I would like to call Amma Nawaz on stage. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका अब नज़्रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका अब नज़्रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका अब नज़्रे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका अब नज़्रे करम। If you really want to enjoy the real information, please ensure that your mobiles are on silent mode. The purpose of gathering here today is to enhance our knowledge about spine mobilization and manipulation. For this, we are very thankful to Dr. Syed Ali Hussain for giving us his precious time. I would like to call him on stage to give his own brief introduction and about the spine mobilization and manipulation. आप लोग जानते होंगे मैं नाम से बेसिकली मुझे कहा गया कि मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, तो मैंने कहा मैं अपने बारे में खुद बताऊंगा आगे। My career in physiotherapy started back in 2005 when I did my FSc and I was looking for a particular area of interest. So when at that day, one day I got a meeting with a physiotherapist. His name is Dr. Shaukat Mahmood. He's currently head of department of CT Hospital, Islamabad. So when I met him, I found that this is the right profession. But I was very dual-minded. I said, okay, let me give it a try first.
If my heart says that okay, you have to move with it, I continue and pursue my career in physiotherapy. So I took admission back in 2005 in a 2-year course. I was very reluctant and hesitant whether to go for this profession or not. People used to call me that okay, physiotherapists are the malchis and they do the mileage and every single thing. So I was very betrayed by the comments of my friends in society. But I said that okay, let me try. And I compared every other profession with my profession during those 2 years. And in 2005, you all remember that there was a big earthquake. And when there was an earthquake, so when there was an earthquake, the most lacking perspective on professionals in the PIMS hospital where I spent my 2 years were the physiotherapists. There are different staffs who are responsible to deal with the emergency situation. For example, if there is a roadside accident, the paramedics are going to lift the patient, provide the basic life support, maybe sometime if they have the abilities to go for the advanced life support, and then they move the patient to the hospital. When the patient becomes stable, for example, if a patient suffered spinal cord injury, now he or she is paralyzed completely, what do you think? Is it really very easy to stay on the bed 24/7? Or that person can exist on the bed 24/7? There comes the role of rehabilitation. When a person's got fracture, for example, and his knee remain in plaster of Paris casting for at least 42 days, and now the patient complains that okay, my knee is not folding well, there comes your role. So I took 2 years course initially. Then I was lucky enough, I got admission in Rawalpindi Medical College first batch. I did my graduation from Rawalpindi Medical College. As soon as I finished my graduation, I got admission in MS MPhil at Rifa University in orthopedic manual physical therapy, that is a specialized and dedicated area of physiotherapy. Currently there are 6 MS that are available, like post-graduation programs. One is orthopedics, one is neuro, cardiopulmonary, there is sports physical therapy, speech and language pathology, and women health. So you can pursue your career in even MPhil or MS level, and that is leading to PhD. There are 2 universities that are also offering PhD. So I enjoyed my work. As time passed by, I have learned that okay, though I'm not a surgical doctor, I'm not MBBS, but trust me, my limits start where so many professionals give up. So I'm not here to degrade some other professional. My purpose is to make you realize that this is a very noble profession and how we can prove it. Now that depends on you and me, that how we are going to deliver or execute the skills. For example, let me tell you a very true story. There was a doctor, orthopedic doctor, he came to me and he said, आप लोगों को क्या पता होता है यार, आप लोग तो वही एक शॉर्ट में थर्मी लगाते हो, एक्सरसाइजेस कराते हो एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा सर नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, आप किसी दिन आएंगे तो फिर हम आपको देखेंगे. एंड वो कोई ऐसे कहने लगे थे कि अल्लाह ने मेरी बात पूरी कर दी. वो एक हफ्ते के अंदर मेरे पास आया विद नेक लॉक एंड ही वाज लाइक दिस एंड ही सेड यार मेरी गर्दन जो है ना डॉक्टर साहब इधर भी नहीं होती, इधर भी नहीं होती, मैं स्टार्ट दूं. तो मैं ऐसा लग रहा, मैंने सर अगर मैं आपके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करूं तो मुझे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का बता, मैं करवाता हूं और मैं आपको एक पेन किलर देता हूं, मैं आपको घर भेज देता हूं. ही सेड यार ये तो ना 2 हफ्ते लग जाएंगे. मैंने कहा ओके, इफ यू अलाउ मी लेट मी परफॉर्म अ मैनूवर. अब मैंने एक मैनूवर परफॉर्म किया तो आज हम आपको सिखाएंगे. हिज नेक वाज टोटली पेन फ्री. He was moving in all directions. He was so glad and inspired that from that day he calls me sir. Though he is one of my teachers also, but he calls me sir. ये सर अली आप बात है. अगर आप अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल एथिक्स और स्किल्स को लेके चलेंगे तो हर दूसरा प्रोफेशन आपकी रिस्पेक्ट करेगा. ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको काम आता और आपकी लोग इज्जत ना करें.
आपकी इज्जत तब नहीं होगी जब आप यूजलेस होंगे, जब आपको काम ही नहीं आता होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेक्चर के कुछ असूल होते हैं, तो सेटिंग एन एक्शन इज द फर्स्ट थिंग कि मैं आपको जरा कम्युनिकेट कर लूँ, ट्यून कर लूँ, आप लोग मेरी बातें समझें, फिर हम फॉर्मल जो मेथड है एजुकेशन का उसकी तरफ आते हैं। कहते हैं कि एक जंगल में एक बंदर जो है उसको चूज किया गया कि इसको डॉक्टर बनाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस कि मैं वो किसी प्रोफेशन को कह रहे हैं हिट करना चाहता हूँ। तो उसको बना दिया डॉक्टर, और जब वो वापस आया तो ऐसा हुआ कि शेर की तबीयत खराब होगी। अब उसको बुलाया गया कि भाई आप आए और बादशाह साहब की जो है वो तबीयत बहुत सख्त खराब है, इनको आप ट्रीट करें। तो उसने कहा मैं बस अभी आया। वो आता है, नीचे शेर जो जमीन पे लेटा हुआ है, वो आता है, कभी एक टहनी पे छलांग लगाता है, कभी दूसरी टहनी पे चला जाता है, कभी तीसरी टहनी पे दरख्त चेंज करता रहता है। नीचे शेर साहब जो है वो वफात पा जाते हैं। अब वहां से वापस आ रहे होते हैं तो जानवर पूछते हैं आप ही डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो वो कहता है एक एपिक जवाब उसका कि मैंने भाग दौड़ तो बहुत की, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। तो अगर आप ऐसे भाग दौड़ करेंगे तो फिर पेशेंट ने ठीक नहीं होना, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रेंड इन द हेल्थ साइंसेस और दिस सेक्टर के आई हैव सीन पर्सनली, आप लोगों ने भी देखा होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं की जाती। प्लीज ऑलवेज रिलाई ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड डू काउंसिल द पेशेंट। आपको मैं एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे इफ आई एम राइट और रॉन्ग। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो हाथ खड़ा करेंगे कि सोते हुए आपको ऐसे लगा हो जैसे आपका सांस रोक रहा है एंड यू जस्ट वोक अप। कभी ऐसा नहीं हुआ? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? ओके, सो वो फीलिंग्स आप बता सकते हैं? या अगर मैं आपको अभी ये कहूँ कि आप एक्टिव हैं, आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं और यहीं पे बैठे बैठे विद इन नो सेकेंड आप अपनी बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। हाउ एजिटेटेड यू फील, यू वांट टू स्क्रैच योर नोज एंड यू आर अनएबल टू डू इट। कितनी इरिटेशन होती है। तो पेशेंट्स यही सारी चीजें सफर करता है। वो अपने हाथ को सर के पीछे नहीं लेके जा सकता, वो फ्लेक्स नहीं हो सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, एंड यू कैन परफॉर्म मिरेकल्स ऑन दैम। तो आज का जो सारा टॉपिक है वो यही है। आई एम ऑल्सो अ रिव्यूअर ऑफ 2 मेडिकल जर्नल्स। मैं इंटरनेशनल ऑथर भी हूँ, मेरी रिसर्चेस हैं। आई एम अ स्पीकर एज वेल, आई एम अ क्लिनिशियन एज वेल। मैं इस्लामाबाद में G8 मरकज़ में एक हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल, वहाँ का स्पाइन सेंटर का इंचार्ज हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपिस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ करंटली। रिफा यूनिवर्सिटी का मैं एक्टिव फैकल्टी मेंबर हूँ। मैं DPTs को, ग्रेजुएशन को और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पढ़ाता हूँ। सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और लर्न नहीं करेंगे, नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। तो प्लीज ट्राई टू लर्न। आप अगर यहाँ से 50% भी मटेरियल लेके जाते हैं अपने जहनों में, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ कि आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? तो जहाँ पे लगे कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए तो आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले ना एक दुआ जो है वो आप सब, एक तो ये होती है कि रब्बे ज़िदनी इल्म, ठीक है, और एक ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। ठीक है, सब लोग जो है वो अपने दिलों में दुआ कर लें कि हमें वो इल्म अता फरमाए जिससे नफा हो लोगों को। तो इसलिए बिकॉज हमारा प्रोफेशन जो है वो लोगों के लिए है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ स्पाइन? और मैंने नीचे आंसर भी रखा हुआ है, दैट्स द वर्टिब्रा। It is the structural as well as functional unit. पूरी स्पाइन बनी हुई भी इंडिविजुअल वर्टिब्रास से और फंक्शन भी इन्हीं की वजह से करती है। How many vertebrae in the spine? Total 33. 7 cervical vertebrae, 12 thoracic है, 5 lumbar है, 5 sacral है, 4 coccygeal है। Sacral are the fused vertebrae. हम नॉर्मल स्पाइन की बात कर रहे हैं, there are some variations. कहीं पे सैक्रलाइजेशन होती है, कहीं लंबराइजेशन होती है। इस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, ना मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें पढ़ें। जस्ट हम नॉर्मल एक हेल्दी स्पाइन की बात कर रहे हैं, उसमें 4 कॉक्सीजल होते हैं, टेल बोन जिसे कहा जाता है समटाइम, वो है। हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज सर्वाइकल टुडे, thoracic एंड lumbar। नाउ
देयर आर इंटरवर्टिबल डिस्क एंड देयर आर 23 इन नंबर। कुछ चीजें जो आपको लिखनी चाहिए या जो पता होनी चाहिए कि देयर इज नो इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन C0 एंड C1। C0 कहते हैं ऑक्सीपिटल को और C1 जो सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा है। एटलस और ऑक्सीपिट इनके दरमियान कोई इंटरवर्टिबल डिस्क नहीं होती। C1 और C2 के दरमियान भी इंटरवर्टिबल डिस्क नहीं होती और C2 से ऑनवर्ड जो है इंटरवर्टिबल डिस्क हर दो वर्टिब्रास के दरमियान में होंगी। तो ये व्यूज है स्पाइन के। अगर हम देखें दिस इज सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइकल रीजन, दिस इज thoracic region, lumbar region, sacrum and coccygeal. This is a lateral view। इसी व्यू को हम एक्सरे पे भी कर सकते हैं, हमें इसी तरह की चीजें नजर आएंगी। तो हर स्ट्रक्चर को आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, वेदर ऑन द रेडियोग्राफ और वेदर ऑन द मॉडल और ऑन द पेशेंट। और आप बहुत सी चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू पैल्पेशन और थ्रू क्लिनिकल स्किल्स। So over here we can see these are all spinous processes, these are transverse processes, these are the laminas। Over here we can see these are the pedicles। और इनकी डिटेल अभी आगे आती है कि किसको लैमिना, और मे भी आप लोगों को पता भी होगा कि लैमिना किसको कहते हैं, पेडिकल्स किसको कहते हैं, बॉडी किसको कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस किसको कहते हैं। आता है या नहीं आता? क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अगर आपको नहीं आता मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आपको आता तो फिर हम इस चीज को स्किप करके आगे चले जाएंगे। आता है सिर्फ एक को। ओके, देखिए वर्टिब्रल बॉडी है फ्रंट पे, और वर्टिब्रल बॉडी के साथ जो पहले दो प्रोसेस निकलते हैं पीछे, इनको हम कहते हैं पेडिकल। और पेडिकल की एक और डेफिनेशन भी ये है कि द प्रोसेस और अपेंडेजेस कहते हैं ग्रोथ को, निकले हुए पार्ट को, द अपेंडेजेस बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द वर्टिब्रल बॉडी इज कॉल्ड द पेडिकल। नाउ दिस whole region from the transverse process to the spinous process is called as the lamina। तो एक वर्टिब्रा के दरमियान में फिर ये जितनी इसका मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इसके दरमियान एक सुराख भी होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ से क्या पास करती है? स्पाइनल कॉर्ड। इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है? ओके, सो व्हाट इज अ मोशन सेगमेंट? हमने कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है स्पाइन का वर्टिब्रा, लेकिन वर्टिब्रा अलोन कुछ भी नहीं कर सकता। उस वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाना है जो फंक्शनल होना चाहिए, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो वर्टिब्रास का और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होना जरूरी है, और साथ जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन सेगमेंट। टू एडजेसेंट वर्टिब्रास and the soft tissue in between them are called as motion segment। Why we call it motion segment? Because all the movements that are possible at spine में movements को मुझे प्लीज बताएं आप में से कि कौन-कौन सी movements possible होती हैं। थोड़ा सा मुझसे बोलें प्लीज। Extension की continuation है, we don't call as hyper extension, we call it as flexion or extension। ओके, और साइड बेंडिंग होती है, रोटेशन होती है। देयर आर फ्यू मोर कांसेप्ट्स दैट आई डोंट वांट टू अनवील राइट नाउ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ और मोशंस भी होते हैं। तो ये जितनी मोशंस है फ्लेक्शन की, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन, वेदर इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल, ये सारी की सारी मोशंस बेसिकली प्रेजेंट होती है मोशन सेगमेंट में। एंड व्हेन अ पर्सन डेवलप्स सम रिस्ट्रिक्शन, अब आपके पास पेशेंट आता है स्पाइनल पैथोलॉजी के साथ, स्पाइनल पेन के साथ, व्हाट रियली हैपेंस, वो स्टूप पोस्चर होगा, फॉरवर्ड बेंडेड होगा, एक्सटेंडेड होगा, बिल्कुल रिजिड हुआ होगा, और वो कहेगा मुझे ये चोट निकली थी, मैंने वजन उठाया था, मुझे कमर में दर्द निकला था, एंड नाउ आई कांट मूव। मैं तो डॉक्टर साहब झुक ही नहीं सकता, मुझे इतना दर्द होता है कमर में और नीचे टांगों में आता है एंड ऑल दैट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? एक मोशन सेगमेंट पे। एक पे हो सकती है, दो पे हो सकती है, 10 पे हो सकती है, सब पे हो सकती है, लेकिन हमें ट्रीट किसको करना है? एवरी मोशन सेगमेंट दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो हम ट्रीट कैसे करेंगे? अगेन आज के जो टूल्स हैं वो मोबिलाइजेशंस एंड मैनिपुलेशंस हैं। अब जॉइंट्स कितने बनते हैं बेसिकली? जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, दो वर्टिब्रल बॉडीज, मैंने मोशन सेगमेंट की डेफिनेशन बताई है, टू vertebras, adjacent vertebras and soft tissues in between them is called a motion segment. Now joints कितने बनते हैं बेसिकली? Joints एक तो vertebral bodies के दरमियान बन गया जहाँ intervertebral disc है, just like a burger। आपने ऊपर एक
कह लें उसका पार्ट रखा है, नीचे रखा, दरम्यान में कुछ स्लाइस रख दिया, कुछ भी मीट रखा, सैंडविच टाइप का, बर्गर टाइप का बन गया। सो जो इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट बनाती हैं दैट इज कॉल्ड एज सिम्फिसियल जॉइंट। और बॉडी में कोई और सिम्फिसिस होता है? Symphysis? Pubis. Why we call it as symphysial joint and why we call symphysis pubis as symphysis? किसी को पता है? Pubis की वजह से यार ठीक है, लेकिन symphysis का मतलब क्या होता? I would like you to recall the basic knowledge of anatomy जो आपने general anatomy पढ़ी होगी first year में। उसमें joints की classification थी, synchondrosis, diarthrosis, सही है ना? तो वहां पे सिम्फिसिस भी एक थी। सिम्फिसियल जॉइंट्स जितने भी होते हैं ये बहुत लाइट मूवमेंट को परमिट करते हैं, स्लाइट मूवमेंट होती है यहाँ पे और ग्लाइडिंग होती है। समटाइम दे हैव अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क इन बिटवीन देम। आई एम सेइंग फाइब्रोकार्टिलेजिनस एंड दे डिफर फ्रॉम डायआर्थ्रोटिक जॉइंट्स जो कि आगे हमारे पास आएंगे। तो दो वर्टिकल बॉडीज के दरमियान कौन से जॉइंट बने? सिम्फिसियल जॉइंट। और बैक साइड पे फेसेड जॉइंट्स होते हैं। अब फेसेड जो हैं वो स्पाइन पे अगर आप इजीली मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे these सॉफ्ट और वाइट स्ट्रक्चर्स मैं आगे ले देता हूं। अगर मुझे लाइव फील्ड्स की दे सकें आप, ऑल दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। अब इनके दरमियान आप ये जगह देख रहे होंगे, ये फेसेड जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो एक आपके पास सिम्फिसियल जॉइंट बना बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडीज एंड दो आपके पास फेसेड जॉइंट्स बन गए नॉर्मली इन द सर्वाइकल और इन द लंबर रीजन ओनली। थोरेसिक थोड़ी सी एक्सेप्शन है और वो आपके सामने होगी, मैं बताता हूँ कि क्या एक्सेप्शन है। तो तीन जॉइंट बनते हैं प्राइमरीली। दो जॉइंट ऐसे हैं जो डायथ्रोटिल जॉइंट है। डायथ्रोसिस का मतलब ये होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। All the diaphragmatic joints are synovial joints. ये भी ध्यान में रखें। जहाँ पे आपको कोई पता चले कि joint diaphragmatic है, that means that is synovial joint. ये भी ध्यान रखना। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? Okay. मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। Okay. Now I told you that all the joints that are diaphragmatic, they are synovial joint. साइनोवियल जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज किसी को याद हो क्या होती हैं? They do have a synovium, they do have a joint capsule और a cavity। और जो आपके पास synovial fluid है इसका पर्पस क्या होता है? Lubrication से होगा क्या? Why I need synovial fluid within a joint? Friction को reduce करेगा, एक पर्पस। दूसरा शॉक एब्जॉर्बर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना सफिशिएंट इतना ज्यादा वो होता है उसके अंदर। और कुछ न्यूट्रिशन, जॉइंट की न्यूट्रिशन सारी वहां से आती है ना, ठीक है। जब डीजनरेशन होगी या एक्सेसिव वहां पे फोर्सेस आएंगे तो उसकी जो रिहैबिलिटेशन होनी है आपने जब करनी है तो थ्रू साइनोवियल फ्लूइड होती है। और साइनोवियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखें अभी, बिकॉज हम जब आगे चीजें डिस्कस करेंगे तो फिर मैं टर्म्स लेता रहूंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आपको उन चीजों का मतलब आ रहा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी जो है वो आपने घरों में बड़ी आसानी से देखी होगी कि आप कस्टर्ड बना के ओवरनाइट छोड़ दें। आप जब बनाते हैं तो बड़ा थिन होता है और छोड़ के जब आप सुबह उसको देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो मड टाइप का और हार्ड किस्म का क्ले बन गया, वो ऐसा होता है ना। सूप आप रख दें ओवरनाइट तो वो भी साफ हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉफी। अगर आप इसको मूव करते हैं तो वो पतला रहेगा और अगर आप उसको मूव करना छोड़ देंगे, स्टेशनरी कर देंगे तो वो गाढ़ा होने लग पड़ेगा। एंड देयर आर फाइब्रोटिक चेंजेस। एक बंदा, नाउ जस्ट इमेजिन अ पर्सन इज नॉट मूविंग हिज एनी जॉइंट, डायफ्रागमाल जॉइंट, कोई भी डायफ्रागमाल जॉइंट वो मूव नहीं कर रहा, तो वहां पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता और कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं और उस पेशेंट की रेंजेस अफेक्ट हो जाती हैं। वो परमानेंटली भी हो सकती हैं और ट्रांजिटली भी हो सकती हैं। सो पर्पस ऑफ इस स्लाइड पे प्लीज अगर ऑफ कर दो, द पर्पस ऑफ द इंटरवर्टिबल डिस्क इज टू एब्जॉर्ब द वेट और शॉक। 60% वेट जो भी आपकी स्पाइन पे आता है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स दैट आर रिसर्च प्रूवन, 60% of the weight of the spine is being carried by intervertebral disc joints।
ठीक है, जो आपके सिंथेसिस जॉइंट्स हैं। तो देयर प्राइमरी पर्पस इज 60% weight bearing and the facet joints they do contribute in weight bearing, that is 30%. But the main purpose of the facets is to guide the movement. And for guiding the movement आपको रिकॉल करना पड़ेगा एक और बेसिक कंसेप्ट। आपने ट्रेन का ट्रैक देखा होगा, तो ट्रेन चलती है उस ट्रैक पर जहाँ पर उसकी पटरी जा रही होती है, ऐसे ही है ना, वो पटरी से हट के नहीं मूव कर सकती। तो आपके फेसेट्स जो हैं ये आपकी मूवमेंट को गाइड करते हैं, और गाइड से मुराद ये है मेरा कि कौन सी मूवमेंट हो सकती है और कौन सी मूवमेंट नहीं हो सकती। अगर आपके फेसेट्स अलाउ करते हैं तो मूवमेंट होगी, अगर आपके फेसेट्स अलाउ नहीं करते तो मूवमेंट नहीं होगी। मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ, फिर आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी मूवमेंट करते हुए इजी फील करते हैं, आप इजीनेस फील होती है। ऑल द वे आपने अपनी नेक को साइड बेंड करना है। हम पेशेंट्स के लिए ये कहते हैं कि आप अपने कान को जो है वो कंधे की तरफ लगाने की कोशिश करें, लेकिन कंधा मत उठा के कान को लगाएं, कान को कंधे पर लगाना है, ठीक है। सो साइड बेंड टू वन साइड, राइट साइड करें लेफ्ट साइड करें, डजंट मैटर एट ऑल, एंड ट्राई टू रोटेट ऑन द सेम साइड इन दैट पोजीशन। मैक्सिमम साइड बेंड और मैक्सिमम साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन आपने परफॉर्म करनी है। इट विल बी रियली वेरी इजी। नाउ इफ यू कंपेयर दिस साइड बेंड टू वन साइड एंड रोटेट टू द अदर साइड, परफॉर्म करके देखेंगे कैसा फील होता है। साइड बेंड टू वन साइड फर्स्ट, ठीक है, और जिस साइड पे आपने साइड बेंड किया उसी साइड पे आपने रोटेशन परफॉर्म करनी है। इट विल बी इजी। एंड एक तरफ आप साइड बेंड करें और ऑपोजिट साइड पे रोटेट करें, इट विल बी डिफिकल्ट because and even it can cause pain. It will cause pain because your facets are not aligned. It will be a restricted movement in everybody because your facets are not aligned. So the purpose of the facet is to guide the movement first, and the purpose of the intervertebral disc joint is to absorb the weight 60%, 30% ये भी करते हैं। And what really happens if there is an abnormal distribution of weight? Why I am teaching you this? अगर आपको आप चाहें तो मैं उर्दू में बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। Why I am teaching this? Because प्रॉब्लम आती कब है? जब मेरी इंटरवर्टिबल बॉडीज पे और 60% से ज़्यादा फोर्स आती है। Let's assume कि मेरी स्पाइन पे 10 किलो का वजन पड़ रहा है, तो 6 किलो मेरा इंटरवर्टिबल डिस्क पे जाना चाहिए, 3 किलो मेरा जो है वो फेसेट्स पे जाना चाहिए, रिमेनिंग जो 10% है वो मसल्स काउंटर करते हैं, ठीक है, तो मसल्स के पास चला गया। अब मुझे पेन कब होना चाहिए? जब मेरी इंटरवर्टिबल डिस्क पे 60% से ज़्यादा वेट आने लग पड़ेगा। मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की, मेरे स्पाइन के कर्व्स खराब हुए, मुझे कोई और प्रॉब्लम था, पोस्चर खराब था, तो मेरे जब वहाँ पे इंटरवर्टिबल डिस्क पे 60% से ज़्यादा वेट आया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। वेदर इट कैन बी डिस्क बल्ज, इट कैन बी अ फ्रैक्चर, इट कैन बी एनीथिंग, एनी पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक। दूसरा जो फेसेट्स है, अगर इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आ गया, वेट बेरिंग ज़्यादा करते हैं आप, 30 से ज़्यादा कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं वेट बेरिंग यहाँ पे मैं कहता हूँ 50% होने लग पड़ी है ना, तो फेसेट्स डीजनरेट कर देंगे और स्पाइन डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये स्टार्ट होती हैं पुअर पोस्चर से, मसल इम्बैलेंस से, मसल वीकनेस से, जिसको हम कुछ भी नहीं समझ रहे होते। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, कान और कंधे के दरमियान में फोन रखा हुआ होता है और ड्राइव करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद हमें दर्द शुरू होता है, फिर हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। या हम बैठे होते हैं तो कैसे बैठे होते हैं, स्लाउच पोस्चर में, कोई हमें बैक का कोई पता नहीं होता कि हमने बैठना कैसे है, कमर सीधी रखनी है नहीं रखनी, पड़ रहे होते हैं तो पूरे ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लेक्स होकर बैठे होते हैं, घुटनों को जो है वो पीछे रखा होता है ठोड़ी के, और एक अजीब सा पोस्चर बना के हम खड़े होते हैं। एंड ये सारे फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पैथोलॉजीज ऑफ द स्पाइन। अब मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, थोरेसिक हैज 9 जॉइंट्स। नॉर्मली सर्वाइकल और लंबर के कितने जॉइंट्स मैंने बताया आपको? 3। बट थोरेसिक हैज गॉट 9 जॉइंट्स। एक मोशन सेगमेंट में कम से कम 9 जॉइंट्स होते हैं। अब थोरेसिक जो है इट्स अ बिट ट्रिकी, बट इट्स मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, ये भी ध्यान में रखें, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट्स अगर स्पाइन में होते हैं तो थोरेसिक होते हैं, और ये मिड पॉइंट पे बड़े होते हैं बिटवीन द सर्वाइकल एंड द लंबर। तो अगर यहाँ पे खराबी आती है तो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। और एक और रूल भी यहीं पे सुन लें कि स्पाइन में अगर एक वर्टिब्रा खराब हुआ, सिर्फ एक वर्टिब्रा,
खराब हो गया, अपनी पोजीशन से हट गया। नॉर्मली फर्ज कर लेंगे उसको ऐसे होना चाहिए था और वो ऐसे हो गया, तो इसने अपने से ऊपर और नीचे वाले सारे वर्टिब्रास को खराब कर देना। जस्ट एक वर्टिब्रा के खराब होने से पूरी स्पाइन इफेक्ट हो जाती है। और जब मैंने करेक्ट करना है तो मोस्ट डिस्टर्ब्ड वर्टिब्रा को करेक्ट करना, मैं उसको ठीक करूंगा, पूरी की पूरी स्पाइन ठीक हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? ओके, मुझे लगना चाहिए आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे एहसास होता है जैसे बिल्कुल आप लोगों को कुछ समझ नहीं लग रहा। ओके, उस इन जॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। thoracic is 9 joints. How? We know we have ribs. So ribs are present bilaterally. Ribs जहाँ vertebral bodies के साथ अटैच होती हैं posterior side पे, वहाँ पे 4 joints बनाते हैं। Rib का जो face है, it's just like the nib of a pen. ऐसे करके होता है, तो उसका एक superior facet होता है, एक inferior facet होता है, और ये दो vertebrae के साथ जुड़ती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसीलिए। यहाँ पे अगर रिब आके जुड़ती है तो वो ऐसे जुड़ती है। आधा उसका हिस्सा जो ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ लगा हुआ होता है और आधा हिस्सा उसका जो नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ लगा हुआ होता है। ये दो जॉइंट बन गए। इसी तरीके से वो यहाँ पे जब अटैच होगी तो दो वर्टिब्रास को टच कर रही होगी। दो और दो कितने हो गए? 4। अब रिब का जो एंगल है, एंगल ऑफ द रिब होता है गोलाई जिसे हम कहते हैं, यहाँ से पीछे से आती है, गोल होके आगे आती है। सो जो एंगल है ये आके आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाती है। कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, जो यहाँ पे बनते हैं। सो 2 राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे 4, और फिर एक आपका लेफ्ट साइड पे कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट 5, और एक राइट साइड पे 6, एक दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान 7 और 2 फेसेट जॉइंट्स 9 जॉइंट्स। और इन 9 जॉइंट्स में से कहीं पे भी पैथोलॉजी आती है अगेन, तो बैड थिंग क्या है कि पूरा thoracic इन्वॉल्व हो जाएगा। अब कोई एक, मैं ये कहता हूँ मेरा एक कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट अफेक्टेड हो गया, कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, उसका इफेक्ट पूरी की पूरी सर्वाइकल स्पाइन, thoracic स्पाइन, लंबर स्पाइन, इवन मेरी रेस्पिरेशन, माय रेस्पिरेटरी पैटर्न्स आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। मेरी रिब की मूवमेंट्स कंप्रोमाइज होने लग पड़ेंगी। और आप एक रेस्ट्रिक्शन ठीक करें, होलिस्टिकली पूरी की पूरी स्पाइन ऐसे लगेगा आपको आपने ठीक कर दिया और ठीक हो जाता है पेशेंट। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी स्पेसिफिक। आपको अगर पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे, इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपको कहता हूँ बेटा लाइट ऑन कर दें और आपको लाइट का स्विच पता है कि कहाँ से ऑन होनी है, तो आप जाएंगे, आप स्विच को प्रेस करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। सो पेशेंट का डिस्फंक्शन सेगमेंट और डिस्फंक्शनल जो जॉइंट है वो आपको पता चल गया। आपने जस्ट उसको हाथ रख के चाहे मोबिलाइज किया, कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, चाहे आपने मोबिलाइज किया, चाहे आपने थ्रस्ट किया, मैनिपुलेट किया, पेशेंट आपका ठीक, विद इन मिनट्स आपका पेशेंट ठीक होके चला जाएगा। वही पेशेंट जो शायद पिछले 8 दिन से 10 दिन से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा था, पेन किलर्स ले रहा था, इंजेक्शंस लगवा रहा था, वो कहता था कि मेरे सांस नहीं लिया जाता, मेरे से लेटने नहीं होता, जस्ट इन अ सिंगल मिनट, 1 मिनट के अंदर, और अगर मैं अपने लिए कहूँ तो शायद मे बी सेकंड्स, 5 to 6 सेकंड्स, उसके अंदर आपका पेशेंट जो है वो, इफ दैट इज आर्थ्रोडियल डिसफंक्शन किसी जॉइंट का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अब उसको ट्यूबरक्लोसिस हुई भी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बंदे को वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस जो कैरी स्पाइन कहते हैं वो ये भी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसी बंदे को एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, डेवलप हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे ट्यूमर है, now that is not my domain or area of practice. I am not supposed to treat cancer patients. क्योंकि उनका कैंसर ठीक, अब मैं पेन को काउंटर कर सकता हूँ लेकिन मैं कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। इसी तरीके से फ्रैक्चर हो गया तो आई एम नॉट सपोज्ड कि मैं उसकी सर्जरी परफॉर्म करूँ। तो डोमेन्स जो है फिजियोथेरेपी के, स्पेशली आप लोगों के हवाले से, वो क्या क्या हैं अगर मैं बताता हूँ, आप लोग लिख लें। दे आर कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल, NMSK, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है, आप कहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि लोग आपको कहते हैं, कोई आपको कहते हैं बेटा ये तो आपको पेशेंट ही नहीं, आपको अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस या डोमेन ऑफ प्रैक्टिस भी साथ पता होना चाहिए। न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल ये ब्रॉडली कहा जाता है। अब इसमें कार्डियो भी है, पीड्स भी है, जीरियाट्रिक्स भी है, विमेन का भी है, लेकिन NMSK जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन एरिया ऑफ डोमेन है आपका।
एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, देयर इज अ वाइड लिस्ट ऑफ कंडीशंस दैट कैन बी, समटाइम्स दे कैन बी ट्रीटेड, समटाइम्स दे कैन बी मैनेज्ड, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैनेज करने का मतलब ये है आई टेल यू हाउ टू कोप अप विद। मैं कहता हूँ ओके नहीं, आपकी जो पैरालिसिस है वो कंप्लीट है, वो ठीक नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है, बट हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इस पैरालिसिस के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हाउ यू कैन मूव फ्रॉम बेड टू द व्हीलचेयर एंड फ्रॉम व्हीलचेयर टू द बेड, एंड आप अपने घर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी कार को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, फीमेल थी, उन्होंने कहा डॉक्टर मैं आई नो दैट आई हैव स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड आई कांट फील माय लेग्स बट आई वांट टू ड्राइव। उसने कहा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विश ये है कि मैं अपने घर से निकलूं, अपनी गाड़ी में बैठूं और मैं किसी भी मॉल में चली जाऊं, मैं गाड़ी में बैठ के ही जो है वो ऑर्डर कर लूं मैकडॉनल्ड या कुछ भी, या मैं अपने बच्चों को लेके जा सकूं। एक सिंपल सा टास्क है गाड़ी चलाना, कितनी मुश्किल काम है। उसकी आपने गाड़ी को मॉडिफाई करना, गाड़ी का ट्रांसफर सिखाना आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए शायद वो बहुत बड़ा काम है, और सिंपल ट्रिक्स से जो है वो आप पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल अगेन अ वेरी मेजर एंड ब्रॉड एरिया, शोल्डर के जॉइंट के साथ पेन के साथ आ सकते हैं, एल्बो जॉइंट के पेन के साथ, मसल्स के पेन के साथ, स्ट्रेन के साथ, जहां पे बहुत से प्रोफेशनल्स कुछ नहीं कर सकते। एंड आई कैन गिव यू मोर देन 100 एग्जांपल्स जहां पे हमारे जो भाई हैं डॉक्टर्स वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये पेशेंट को कहते हैं ये नरम पट्टे जो हैं वो टूट गए हैं, ये खराब हो गए हैं, आपने ये दवाई खानी है, ये जेल अप्लाई करनी है, एंड दैट्स इट, बिकॉज़ दे डोंट हैव द मोडालिटीज टू ट्रीट। मेरे पास मोडालिटी है कि मैं आपको बता सकता हूं कि प्रूव थ्रू रिसर्च एंड इट्स रिसर्च प्रूवन आल्सो, मैं क्लिनिकल बेसिस पे भी बता सकता हूं कि हां ये लगाऊंगा तो ये हीलिंग बेहतर हो जाएगी, ये लगाऊंगा तो फंक्शन बेहतर हो जाएगा। स्प्रेन को कैसे ठीक करना, स्ट्रेन को कैसे ठीक करना, ये मोशन रिस्ट्रिक्शंस हैं इधर, एक फंक्शन है गुड। और अगर मैं ये कहूं कि शेप या कंटूर्स डेवलप करना, मेंटेन करके रखना, ऐसा है या नहीं है? लिगामेंट सिंपल आप समझें जैसे आपने सामान के साथ रस्सियां बांधी हुई हैं, ठीक, तो आपके पास स्पाइन पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है दैट रन्स ऑल द वे फ्रॉम द अटलांटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट टू द सैक्रम। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट स्ट्रेट अवे वर्टिब्रल बॉडीज के सामने जो है वो ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आप समझें कि बैंड है, एक रिबन है इतना छोटा, वो ऐसे ऑल द वे नीचे आ रहा है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। इसी तरीके से पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है जो कि प्रेजेंट होता है बैक साइड पे, इस साइड पे प्रेजेंट नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड के आगे बढ़ा हुआ होता है, अंदर की साइड पे होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। देन देयर इज इंटरस्पाइनस लिगामेंट व्हिच इज बिटवीन टू स्पाइनस प्रोसेसेस। देन देयर इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो स्पाइनस प्रोसेसेस के भी ऊपर होगा, पीछे की साइड पे होगा, कनेक्टिंग होगा। उसके बाद इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट भी होता है हमारे पास, और सबसे मैजिकल लिगामेंट स्पाइन में जो आपको मस्ट पता होना चाहिए, दैट इज फ्लेवम। इट्स आल्सो कॉल्ड एज येलो लिगामेंट। येलो लिगामेंट जो है वो आपकी स्पाइन के कर्व्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, और जो आपकी टेक्निक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी येलो लिगामेंट होता है। अगर उसको टारगेट कर दिया आपने, और वो भी मैं आगे बताता हूँ कि कैसे करेंगे हम, तो आपके पेशेंट बहुत अच्छे और जल्दी ठीक होंगे। सो आई again tell you the ligaments, anterior longitudinal ligament on the front, the posterior longitudinal ligament, it also runs from the occiput to the sacrum, और ये posterior आता है, posterior longitudinal ligament. Then there is interspinous ligament, supraspinous ligament, intertransverse ligament and the yellow or ligamentum flavum. So ligamentum flavum जो है, इसकी origin insertion को भी आपको पता होना चाहिए। इसकी origin insertion ऐसे है कि it starts from the lamina of superior vertebra and it moves down to the lamina of inferior vertebra. मैंने बहुत सिंपल बताया आपको, वैसे इसकी डेफिनेशन हम जो करते हैं ये बताते हैं। inferior and anterior aspect of the lamina of superior vertebra above, इसको हम कहते हैं origin, और इसकी insertion कहलाते हैं anterior and superior lamina और part of the lamina of the inferior vertebra below। ये इसकी प्रॉपर जो है वो ओरिजिन और इंसर्शन होती है।
तो आपके लेवल पे याद क्या रखना है, लिगामेंट्स के नाम क्या क्या हैं, रिपीट क्यों कर सकता मुझे? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट एंड येलो लिगामेंट। गुड। बोर तो नहीं हो गए भाई? जहां पे बोर हो मुझे बता सकते हैं इजीली। We can stop, we can take a break. Okay, now we can see all these ligaments. And if you can see this little section, sagittal view ligament हम लोगों ने और vertebral bodies, and in between the vertebral bodies there is intervertebral disc. Now this intervertebral disc is, you can say it's additionally supported or reinforced, ठीक है? It is reinforced anteriorly by the anterior longitudinal ligament, क्योंकि intervertebral disc जो है it's just like बर्गर खाते हैं, आप आगे से उसको चक मारते हैं, उसका content जो है पीछे स्लिप हो जाता है, आप दूसरी साइड से उसको चक मारते हैं, वो इधर आ जाता है। So nature has provided you, Allah Subhanahu wa Taala has provided you stability with what? These ligaments, added stability. कुछ तो वो already जुड़ी हुई होती हैं, sticky होती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं vertebral bodies के साथ, और कुछ ये है कि ये एडेड स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। सो ये कोशिश ये करेगा कि डिस्क आगे से होके ना फ्रंट वाली साइड पे ना आ जाए। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है ये कोशिश करेगा कि वर्टिब्रा जो है इसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क पीछे वाली साइड पे ना आ जाए, और बाकी सारे जो लिगामेंट्स हैं वो आपको कुछ लिमिट करते हैं फ्लेक्शन को स्पाइन की, कुछ लिमिट करते हैं आपकी एक्सटेंशन को, कुछ साइड बेंडिंग को, कुछ रोटेशन को। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखें, आपके स्पाइन के मॉडल में हमेशा एक चीज लगी हुई होती है, दैट इज this intervertebral, what's this, the part of a disc that is protruded, it's a disc lesion जो शो किया हुआ था। ये डिस्क प्रोलैप्स कैसा होता है? प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि डिस्क की जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डिस्क के कितने पार्ट्स होते हैं? दो, कौन से? न्यूक्लियस फाइब्रोसिस एंड एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है? तो ऐसे समझ लें कि जो एनुलस फाइब्रोसिस है दे आर 90 कंसेंट्रिक रिंग्स, तो वो समझ लें कि 90 बैलून्स हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो सबसे इनर बैलून है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। गॉट इट? 90 बैलून्स हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो सबसे अंदर वाला उसके अंदर पानी भरा हुआ है आपने। दो इट्स नॉट 100% वाटर, ठीक है, इसमें मेजर कंटेंट जो है वो 95% वाटर होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, और 5% प्रोटीग्लाइकेंस होते हैं, बट वो हम कहते हैं कि सेमी सॉलिड मास है या जो भी है। नाउ दैट कैन कम आउट। व्हाई? आपसे कोई पूछ सकता है कि जी बेटा ये डिस्क बाहर पोस्टरोलैटरल साइड पे क्यों निकलती है? व्हाई? व्हाट इज द मैकेनिकल बेसिस फॉर दैट? सो आई टोल्ड यू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला has provided you anteriorly with anterior longitudinal ligament, वो उसके सामने एक और सपोर्ट है। Posteriorly, exactly on the posterior side, there is posterior longitudinal ligament which is again supporting, but the lateral aspect, the posterolateral aspect, it is deficient. यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होती, एक्सटर्नल कोई और सपोर्ट नहीं है, एनाटॉमिकल कोई सपोर्ट नहीं है, तो डिस्क यहाँ से बाहर आ जाती है। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्क बाहर क्यों आती है, तो कोई मुझे बता सकता? क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले किया है। कितने से ज्यादा? 60% से ज्यादा वेट होगा, या कोई इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी चल रही होगी, वैसे इसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, स्टीरॉइड ले रहा है कोई बंदा, चिकनगुनिया है बहुत अरसे से, एस्थमेटिक है बहुत अरसे से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, ये मैं इसकी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और यंग्स में ज्यादा टेंडेंसी होती है, फ्रॉम 25 to 40 people have this age period is most prone to develop this pathologies. ना ये बूढ़ों में होती है यूजुअली, और ना बच्चों में यूजुअली होती है। बूढ़ों में डिहाइड्रेशन होती है, पानी कम हो जाता है, डिस्क सूख जाती है, इसकी मोबिलिटी माइग्रेशन कम हो जाती है। बच्चों में ऑलरेडी इतनी ज्यादा वेट बेयरिंग नहीं होती है, बोन्स डेवलप कर रही होती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो कंपनसेट हो जाती हैं चीजें। लेकिन जो यंग हेल्दी एडल्ट्स हैं उनमें जो है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है आफ्टर 25 स्टॉप हुई भी होती है, और उन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं। सो एनी क्वेश्चन आपके नाउ? नो? इसमें हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं।
यहाँ पे facets बन रहा है, facet joints, ठीक है, which guide the movement. This is the transverse process और thoracic ये region है क्योंकि यहाँ पे costo transverse आपके पास facet बना हुआ है. Now this is spinous process, vertebral body, capitals, superior articulating facet, inferior articulating facet, और ये transverse process और spinous process के दरमियान वाला जितना portion है that is also lamina, intervertebral disc, anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, interspinous ligament और intertransverse ligament भी हो सकता है. ये interspinous है और ये supraspinous ligament. Now मैंने आपको कहा था कि हमारी टेक्निक इफेक्टिव होनी चाहिए या वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक येलो लिगामेंट है. Why I said this? इसको देखे बिना हम बात करते हैं. ऐसा है कि अगर मैं एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी बांधता हूँ और दूसरी गाड़ी के पीछे तीसरी गाड़ी बांधता हूँ और फिर चौथी और पांचवी और 10 गाड़ियां बांध देता हूँ और मैं एक गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करता हूँ, what will happen? रस्सी टूट जाएगी. All the cars will move in the direction of first car. ठीक है ना? पहली कार की जो डायरेक्शन है या ऐसा ही है कि मैं कुर्सियां बांधूं और मैं एक कुर्सी को खींचता हूं तो बाकी सारी उसके पीछे आ जाएंगी. ऐसे ही होता है. आपके जो वर्टिब्रास जितने भी हैं इनमें सारा कनेक्टिंग फीचर है एक, दैट दिस इज thoracodorsal fascia और बॉडी में हर जगह पे ये लेयर होती है. इसको ये कनेक्ट होती है स्ट्रेट अवे supraspinous ligament से. Now it is connected with interspinous ligament. Interspinous ligament is connected with ligament of flavum or yellow ligament. Now मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पीछे खींचूं इस जगह से या इन दोनों को पकड़ के पीछे खींचूं तो इफेक्ट क्या होगा कि ये जो जगह है ये पीछे आ जाएगी and the whole vertebra can move backward. और अगर मैं इसको प्रेस करता हूं आगे की तरफ तो whole vertebra can move forward. और यही हमारा पर्पस होता है most of the time. In 80% of the cases, we just want to move the vertebra anterior and backward. Okay, ये already one fact discuss कर चुके हैं. Nucleus की example देखें कैसा. Nucleus is placed in between two vertebral bodies and the annulus. Spine curves. अल्लाह ने आपको क्यों कर्व्स दिए हैं स्पाइन में? वैसे नॉर्मली एक बेबी जब पैदा होता है उसकी स्पाइन सी शेप होती है, टोटली फ्लेक्स्ड होता है ऐसे आगे करके, नी टुवर्ड्स चेस्ट एंड फ्लेक्स्ड, पूरी स्पाइन सी शेप होती है. हम कहते हैं स्पाइन में 4 कर्व्स होती हैं, 2 होती हैं प्राइमरी और 2 होती हैं सेकेंडरी. प्राइमरी वो होती है जो प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ और उसमें आपके पास thoracic है और आपके पास सैक्रम है. और सेकेंडरी कर्व्स होती है आपके सर्वाइकल एंड लंबर. अब सर्वाइकल कब डेवलप होती है? जब बच्चा नेक होल्डिंग कर रहा है. और कितनी एज में करता है नॉर्मल चाइल्ड? 9 to 12 मंथ्स. ठीक है, अगर 9 से 12 महीने के दरमियान बच्चा नेक होल्डिंग कर लेता है तो इट्स नॉर्मल फीचर. अगर इसके बियॉन्ड जाता है, अर्ली भी कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे अगर बियॉन्ड जाता है तो फिर हम कहते हैं कि डिलेड माइलस्टोन्स है, इसके माइलस्टोन्स ही प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर रहा. देन लंबर जो है वो कर्व 15 इयर्स तक डेवलप हो सकती है. सर्वाइकल कितनी जल्दी डेवलप हो जाएगी? 9 months to 1 year. एंड द लंबर, ये बच्चा खड़ा होना शुरू होता है 1.5 से 2 साल का बच्चा तकरीबन खड़ा होना शुरू होता है. एंड देन वो वहां से लेके 15 साल तक उसकी लंबर स्पाइन की कर्व डेवलप होती रहती है. तो दोनों ये जो कर्व सेकेंडरी हैं जो डेवलप होती हैं इनमें लॉर्डोसिस होता है. लॉर्डोसिस का मतलब क्या है? कॉन्कैविटी ऑन द पोस्टीरियर साइड, कन्वेक्सिटी ऑन द एंटीरियर साइड. तो सर्वाइकल पे भी आपको बैक पे कॉन्कैविटी मिलती है और लंबर पे भी आपको, यहाँ पे आपको देखना इजी होगा, सर्वाइकल पे भी आपको कॉन्कैविटी फील हो रही होगी, this feature, and lumbar also has got this feature. So nature has provided the curves because it wanted your spine to absorb more weight. अगर बिल्कुल vertical कर दें, straight कर दें spine को, जो एक deformity होती है, that is called as bamboo spine deformity.
एक डिफॉर्मिटी ऐसी भी होती है जिसमें बिल्कुल वर्टिब्रास एक दूसरे के साथ स्ट्रेट हो जाते हैं, उस बंदे में ना तो मूवमेंट होती है और उसमें माइनर फोर्सेस का भी इंपैक्ट ऐसे होता है जैसे उसको लगता है उसकी बोन्स क्रश हो गई। ओके, सो नॉर्मली हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट, स्पाइनल अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए और इसमें डेविएशंस क्या है? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज लॉर्डोसिस, काइफोसिस, एक्सैजरेटेड thoracic curve, खूब निकला हुआ होना। देखे हैं लोग कभी कुबड़े जो होते हैं आगे की तरफ, ये बैक हम्प निकला हुआ होता है पीछे, दैट इज कॉल्ड एज काइफोसिस और exaggerated thoracic curve. A lateral shift in the spinal curvature. My spine can be like this. I can be having scoliosis. Scoliosis is a lateral shift or S-shaped deformity of the spine. इसमें भी lateral shift develop हो रहा है और ये सारे के सारे आप ठीक कर सकते हैं. It's not a very difficult task or unachievable task. पर ये patients within days ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि आप ठीक ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करें. मोशंस को हमने कहा था कि हम एक चीज और आपको सिखाएंगे, दैट इज कपल्ड वर्सेस नॉन कपल्ड मोशंस और मूवमेंट्स. बॉडी में बड़ा कम ऐसा होता है कि एक मूवमेंट आइसोलेटेडली हो, और स्पाइन में तो ऐसा समझ लें कि नामुमकिन ही हो तकरीबन. अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. आप सारे अपने रिस्ट को फ्लैक्स करें, स्ट्रेट अवे फ्लैक्स करें और अल्नर डेविएशन के साथ फ्लैक्स करें. ट्राई टू फील दिस. इज दिस इजी? और रेडियल डेविएट करें और फिर फ्लैक्स करें. किसकी रेंज ज्यादा है? इस तरफ करके नीचे करें तो ये हाथ ज्यादा नीचे आ रहे हैं, इस तरफ करके नीचे करें तो हाथ नीचे आ रहे हैं. अल्नर डेविएशन इज इजी और अल्नर डेविएशन के साथ जो है वो मूवमेंट, रिस्ट की फ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजी होती है. Now this is a coupled motion. Simply speaking, एक मूवमेंट करते वक्त दूसरी जो मूवमेंट ऑटोमेटिक हो रही होती है, that is called as coupled or conjunct movement. अब मैं साइड बेंड करता हूँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मेरे वर्टिब्रा स्ट्रेट में साइड बेंड कर जाए. वो साइड बेंड के साथ किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट भी करते हैं. अगर वो रोटेट नहीं करेंगे तो पैथोलॉजिकल है. तो कपलिंग के जो पैटर्न्स हैं वो आगे आएंगे. इस स्लाइड्स में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, अभी भी लिखवा सकता हूँ. आपको जुबानी याद होने चाहिए कपलिंग के पैटर्न्स के. स्पाइन पे कपलिंग कैसे होती है? वी हैव 3 रीजंस जहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर. मजे की बात यह है कि सर्वाइकल में एक रूल फॉलो होता है और थोरैकोलंबर में एक रूल फॉलो होता है. तो आपके लिए 2 रीजंस को ध्यान में रखना इजी है. और फिर हम इसको और ज्यादा इजी कर देते हैं. यहीं पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, इसका फंक्शन पूरा प्रॉपर फंक्शन बताया ना मुझे. लड़कों में से तो बेचारे लड़के बोलते ही नहीं है. कोई क्या किसी ने कहा था कि बिल्कुल बोलना नहीं है? यस, एग्जैक्टली. साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द ऑपोजिट साइड. अब ये जो कपल्ड मूवमेंट है ये हमारे पास अपर सर्वाइकल स्पाइन की है. प्लीज राइट इट डाउन. ये चीजें याद नहीं रहेंगी. अपर सर्वाइकल स्पाइन जो है आपके पास, इसकी कपल्ड मूवमेंट क्या है? साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द ऑपोजिट साइड. और लोअर सर्वाइकल स्पाइन, इसकी कपल्ड मूवमेंट होती है आपके पास साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द सेम साइड. दिस इज कपल्ड मूवमेंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन. इसके रिवर्स की जितनी मूवमेंट्स आपको नॉन कपल्ड मूवमेंट्स कहलाएंगी. मसलन अपर सर्वाइकल स्पाइन पे अगर आप कहेंगे साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द सेम साइड, इट विल बी टर्म्ड एज नॉन कपल्ड मूवमेंट फॉर द अपर सर्वाइकल, whereas the same movement is coupled movement for the lower cervical spine. मैं रिकॉल कर देता हूँ. अपर सर्वाइकल स्पाइन पे coupled movement है साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द ऑपोजिट साइड. ठीक है. और लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे coupled movement है साइड बेंडिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द सेम साइड. अब मैंने आपको कहा था thoracic और lumbar पे एक ही रूल फॉलो होता है. अब रूल क्या है कि अगर तो फ्लेक्शन में स्पाइन तो एक रूल हो गया और एक्सटेंशन में या तो दोनों रीजन पे एक तरह के रूल्स फॉलो होते हैं. सर्वाइकल में फ्लेक्शन एक्सटेंशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल स्पाइन में.
बट thoracolumbar spine पे चीजें चेंज हो जाती हैं. When my spine is in flexion, तो कपलिंग कैसे होगी? साइड बर्डिंग टू वन साइड विद रोटेशन टू द सेम साइड, जो कि लोअर सर्वाइकल स्पाइन की है. कपल्ड मूवमेंट है ना लोअर सर्वाइकल स्पाइन की. तो फ्लेक्शन में मेरे पास thoracolumbar पे कौन सी मूवमेंट कपल हो रही है? जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट है. और अगर मेरी स्पाइन एक्सटेंशन में है तो अपर सर्वाइकल स्पाइन की कपल्ड मूवमेंट बन गई है. मींस कि जो अपर की कपलिंग है वही मेरी thoracolumbar की बन जाएगी. So is it very difficult concept to remember? So cervical याद रख लें और फिर उसके साथ जो है वो आप thoracic और lumbar easily याद रख सकते हैं. Coupled movements क्या होती है normally? ऐसी movements जिनमें softest hand feel आती है, patient freest to move होता है और जितने periarticular structures होते हैं, soft tissues होते हैं वो बड़े relaxed होते हैं. These are called as coupled movement or simply these are the movements which are very easy for everybody to perform automatically. Patient को perform करते हुए कोई problem नहीं होता. Non-coupled motions जितने होते हैं ये most restricted होते हैं. They produce harder head feels. In these movements, all the periarticular structures they are very tight. Okay. अब इसको जरा देखेंगे. मैंने ये लिखवाया आपको. ये अपर सर्वाइकल स्पाइन और ये लोअर सर्वाइकल स्पाइन. टाइप 1 जैसे कहा जाता है साइड बेंडिंग विद रोटेशन ऑपोजिट साइड अपर सर्वाइकल स्पाइन की, एंड टाइप 2 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज साइड बेंडिंग विद रोटेशन टू द सेम साइड. दीस आर कपल्ड मूवमेंट्स. एंड नॉन कपल्ड मैंने स्ट्रेट अवे टाइप 1 टाइप 2 करके लिख दिया है कि अगर आपको टाइप 1 का पता तो क्या होगा और टाइप 2 का पता तो क्या होगा. Okay, now thoracic और lumbar पे whether in flexion or in extension जो कि already हम discuss कर चुके हैं. अभी तक कोई ऐसा concept जो ना समझ आया हो? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी समझ नहीं आया. ये इसके जो मैंने आपको बताए थे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके करने का फायदा क्या. अच्छा, आपके प्रेजेंटेशंस जो है मैं असफर भाई को दे दूंगा, फिर आपको इजीली प्रेजेंटेशंस मिल सकती हैं. आप प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस मत करें, प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये मटेरियल ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. आप एक लफ्ज़ लिखें ना, हाउ टू परफॉर्म स्पाइन मोबिलाइजेशन या बेसिक्स ऑफ स्पाइन मोबिलाइजेशन, तो एक नहीं 1000 प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी. मैटर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसकी समझ क्या आ रही है. अगर आपको समझ ही नहीं आ रही और आपको पता ही नहीं है या आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो फिर टोटली जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है. ओके, सो वी हैव गॉट द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फेसेस. अभी सिर्फ ये याद रख लें द सर्वाइकल हैव, और ये हम पैरेलल जो या हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी बात कर रहे हैं, उसके रेफरेंस से. सर्वाइकल हैव फेसेट्स जॉइंट्स का जो सर्वाइकल के एंगल है वो क्या है 45 डिग्री. थोरैसिक का जो 60 है और लंबर का 90 डिग्री है. मैं इसको उतार दूं, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है ये. हम यहाँ से बहुत कच कर रहे हैं. ओके, नाउ सर्वाइकल दे हैव गॉट 45 डिग्री ऐसे. अब इसके लिए एक रूल याद रखें. सिंपली आपने किसी भी वर्टिब्रा का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन निकालना फेसेट्स का, तो आप क्या करेंगे, उस वर्टिब्रा पे हाथ रखें और वहां से आपका जो लैटरल मार्जिन है ऑर्बिटल कैविटी का, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें और हॉरिजॉन्टल के साथ कंपेयर कर लें. तो सर्वाइकल पे ऑटोमेटिकली 45 बनेगा. थोरैसिक से आप लेके आएंगे तो इट विल बिकम 90 और लंबर से आप लेके जाएंगे तो इट विल बिकम सॉरी थोरैसिक से 60 और लंबर से आप लेके जाएंगे दैट विल बिकम 90. Why I am teaching you this? आप पूछ सकते हैं कि सर इस एंगल को पढ़ने की क्या जरूरत है, याद रखने की क्या जरूरत है. जब मैं इस वर्टिब्रा को हिलाना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको फोर्स 45 डिग्री के एंगल पे दूं, क्योंकि नेचर ने इसको 45 डिग्री का ट्रैक दिया हुआ है कि ये ऐसे और ऐसे मूव कर सकता.
अब इस ट्रैक को मैं ऐसे और ऐसे बुलडोज करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? एक मूवमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है मैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन। सेम विल हैपन, आपका जो thoracic है 60 डिग्री के एंगल को यूज करना, अगर मैं कोई और एंगल यूज करूंगा तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन। एंड अगेन फॉर द लंबर। अच्छा, अब कुछ मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, मसल्स तो सिर्फ अपने लेवल पे ये बात याद रखें, स्पाइन में दो तरह के मसल्स हैं, वन आर ग्लोबल मसल्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज कोर मसल्स। एंड अगर कोई बंदा मुझे कोर की डेफिनेशन बता दे, कोई भी बंदा, वेदर स्टूडेंट और अ थेरेपिस्ट, तो व्हाट इज मेंट बाय कोर? लफ्ज तो आपने बहुत सुना, कोर स्ट्रेंथनिंग कराएं, कोर स्ट्रेंथनिंग कराएं, कोर मसल्स पे काम करें। कोर किसको कहते हैं? वैसे उर्दू में, इंग्लिश में कोर किसको कहते हैं? उर्दू तर्जुमा क्या है कोर का? एट द कोर ऑफ हार्ट, एट द कोर ऑफ अर्थ, ये कभी लफ्ज नहीं सुना? बिल्कुल ठीक है। कोर कमांडर सुना है जी। एग्जैक्टली, कोर कमांडर भी होता है एंड इट आल्सो मींस द सेम। कोर कहते हैं स्पेशल को, खास को, ठीक है? तब इसका एक मतलब निकलता है। तो कोर मसल्स बेसिकली द रीजन, हम कहते हैं खास रीजन कौन सा स्पाइन में? द रीजन बिटवीन द डायफ्राम, रेस्पिरेटरी डायफ्राम एंड द पेल्विक डायफ्राम। पेल्विस का भी डायफ्राम होता है, ठीक है? तो पेल्विक के डायफ्राम से लेके रेस्पिरेटरी डायफ्राम तक का जितना रीजन है, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर, दैट इज कॉल्ड एज कोर। और ये कोर जो है वो आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी को बहुत हेल्प करती है। तो कोर मसल्स नॉर्मली वो मसल्स हैं जो कि पूरी स्पाइन पे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मसल्स होते हैं, जैसे फिंगर फिश होती है, इससे याद रख लें, फिंगर फिश जितने मसल्स होते हैं, और इनका काम होता है फाइन ट्यून करना मूवमेंट्स को। आप जो बड़ी फाइन मूवमेंट करते हैं ना, जरा सा आगे गए, जरा सा पीछे आए, बड़ी कंट्रोल्ड मूवमेंट, कभी सर इधर हल्का सा किया, इधर किया, एक एक डिग्री की जो मूवमेंट्स हैं, वेरिएशंस हैं, वो कोर मसल्स करवा रहे होते हैं। ग्रॉस मूवमेंट है, जनरलाइज्ड फ्लेक्शन, जनरलाइज्ड एक्सटेंशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लोबल मसल्स। अब कोर मसल्स जिस सेगमेंट से, अगर सर्वाइकल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सर्वाइकल पे इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन ग्लोबल मसल्स लंबर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सर्वाइकल तक जा रहे हैं, लंबर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, थोरैसिक तक आ रहे हैं। तो इनका एक ये भी डिफरेंस है कि कोर मसल्स जो है वो छोटे हैं और जो आपके ग्लोबल मसल्स हैं वो बड़े हैं। तो ग्लोबल मसल्स प्रोड्यूस करते हैं वो मूवमेंट जस्ट लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और जो कोर मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। Okay, I have written that always treat muscles first, then vertebrae. मसल्स पे पहले फोकस करें। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मसल डिसफंक्शन है, मसल ने एक वर्टिब्रा को गलत पोजीशन में रखा हुआ है, आप वक्ती तौर पे पेशेंट आया, आपने वर्टिब्रा को धकेला, जोर लगाया, वर्टिब्रा को अपनी जगह पे वापस भेज दिया, घर भेज देंगे पेशेंट, थोड़ी देर बाद मसल फिर पुल करेगा उस वर्टिब्रा को, फिर खींच के ले आएगा वहां पे। तो आपने मसल को भी ट्रीट करना, और कोशिश करें कि पहले मसल को ट्रीट करें। सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज होंगे, रिलैक्स होंगे तो वो परमिट करेंगे वर्टिब्रा को मूवमेंट। अगर वो टॉट होंगे या टाइट हुए हुए तो फिर वो परमिट नहीं करेंगे। एंड फील, बहुत से लोग ये कंसेप्ट पहले जानते होंगे, एंड फील किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जो सीनियर सेमेस्टर के लोग हैं, फीलिंग एट एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रेंज ऑफ मोशन सिंपली, यार सिंपली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो रेंज है वो लिमिट कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है। मेरी एल्बो यहाँ पे आके खत्म होगी ना, फ्लेक्शन, अब मैं सोचूंगा ये यहाँ आके क्यों खत्म हुई, इससे आगे क्यों नहीं जा रही, सो आई प्रेस ऑन इट एंड आई ट्राई टू सी ओके कि यहाँ एंड फील किया है कि कौन सा स्ट्रक्चर लिमिट कर रहा है। नॉर्मल एंड फील्स होती है सॉफ्ट, ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। मैं नी को फ्लेक्स करता हूँ, मेरा काफ आ जाता है पीछे मेरे हैमस्ट्रिंग्स के साथ, और ये इनको आगे परमिट नहीं करने देता कि फ्लेक्स हो। इट विल बी कॉल्ड एज सॉफ्ट ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यूज। और सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स हो सकते हैं नॉर्मली, दे कैन बी फर्म। फर्म का मतलब होता है थोड़ा सा सख्त, ठीक है, बहुत सख्त नहीं, हार्ड से जरा कम सख्त। और फर्म में फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हैं, इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करते हैं, मजे की बात है स्पाइन पूरी की
पूरी स्पाइन की हर एंड फील वो फर्म है, हर मूवमेंट की एंड फील फर्म है नॉर्मली, चाहे वो फ्लेक्शन है, चाहे वो एक्सटेंशन है, वो साइड बेंडिंग है, वो रोटेशन है, एनी मूवमेंट। उसके बाद हार्ड, बोन ऑन बोन, बोन आपकी एक दूसरे के साथ आके आर्टिकुलेट जो कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ फंस रही हैं या रोक रही हैं एक दूसरे को। जिस तरह एल्बो एक्सटेंशन होती है, ओलिक्रेनल प्रोसेस है आपका, ये ओलिक्रेनल फोसा के अंदर जब आके फिट होता है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये इनका पता होना जरूरी है आपको। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले ही बता दी कि पूरी स्पाइन जो है वो बजाय इसके कि मैं एक एक मूवमेंट करता, all these are firm, all the movements of the spine they have the end feel firm. Okay, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम, ये भी आप लोगों को बेसिक बायोमैकेनिक्स का फंक्शन है ऑलरेडी पता होगा। There can be osteokinematics. Osteokinematics फिजियोलॉजिकल मोशंस, एल्बो की एग्जांपल ले लें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, स्पाइन की ले लें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ऑस्टियो कहते हैं बोन को। एंड देयर कैन बी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, जॉइंट के अंदर मूवमेंट, बोन की मूवमेंट और जॉइंट की मूवमेंट। सो एक्सेसरी मोशंस का आपने नाम सुना होगा कभी कि जब मैं फ्लेक्शन करता हूं तो इसके साथ कोई और एक्सेसरी मोशंस होते हैं, साथ और भी थोड़े थोड़े मोशंस हो रहे होते हैं। नाउ दीस एक्सेसरी मोशंस दे आर कॉल्ड एज रोल, नॉट स्पाइन, इट्स स्पिन एंड ग्लाइड। ठीक है, रोल स्पिन ई नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्पिन एंड ग्लाइड। रोल किसको कहते हैं? फुटबॉल है, आपने जमीन के ऊपर रखा और रोल करता रहा। सो एक दोनों बल्कि जो सर्फेसेस हैं, दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स की न्यू सर्फेसेस हमेशा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती रहेंगी। इसका मतलब क्या है? न्यू सर्फेसेस ऑफ both the bones will come into contact with each other. रोल जैसे बॉल रोल करके जाता है। Then there can be spin, घूमना, एक ही जगह पे घूमते रहना, स्पिनिंग किस तरीके से होती है। And the last is glide. अच्छा, इसको असल में कहना चाहिए स्लाइड। आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे। What's this motion? It's called as slide. और हम इसी स्लाइड को, ये मोस्ट मिसिंग कंपोनेंट है जितनी भी पैथोलॉजीज होती हैं स्पाइन में या जॉइंट्स में, स्लाइड जो है या ग्लाइड जो है, इट इज द मोस्ट लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेसरी मोशन। हम सिर्फ यही प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारे मोशन को बहुत ठीक हो जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल कि पेशेंट आया, आपने ग्लाइड्स परफॉर्म की, आपने वो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो परफॉर्म करवाया पेशेंट से, पेशेंट ठीक हो गया। Mobilization is a therapeutically produced arthrokinematics जिसको हम ग्लाइड कहते हैं। The amount or drive of the glide differs according to the grade of movement. कितना आगे लेके जाना है? It's just like कि मैं इसको दबाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ आए। तीनों मूवमेंट, पहली मूवमेंट यहाँ तक हुई, दूसरी यहाँ तक और तीसरी यहाँ तक, या इसको मैं 6 ग्रेड्स में करूँ, 5 में करूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे पास कौन पेशेंट आया और कैसा आया, या मैंने ग्रेड ऑफ मूवमेंट जो है वो क्या चूज किया। इसको खुद पढ़ लें जरा, कुछ देखें, समझे, कुछ समझ आती है। Always, always, always mention a complete motion circuit. Restriction है तो कहाँ पे है? C4, C5 के दरमियान है या C2, C3 के दरमियान है? Because अगर आप लिख दें C3 तो C3 तो C2 के साथ भी एसोसिएटेड है और C3 जो है C4 के साथ भी एसोसिएटेड है। तो आपने लिखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है, पूरा मोशन सेगमेंट। ऑलवेज रिमेंबर रूल ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रल मोशन। जो मर्जी मोशन हो जाए, मुझे सुपीरियर वर्टिब्रा को देखना है कि सुपीरियर वर्टिब्रा पे कौन सा मोशन हुआ है। मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से somebody fixed my head in this position and told me to move my torso. अब मैंने नीचे से पूरी स्पाइन को रोटेट करने की कोशिश की, स्पाइन जिस मर्जी तरफ गई है, नॉट कंसर्न, नीचे वाली। अपर वर्टिब्रास पे क्या मोशन हुआ था? इट इज जस्ट लाइक लेफ्ट रोटेशन। तो मैंने ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, या ये कह देना कि ये लेफ्ट रोटेशन है। ऑलवेज रिमेंबर रूल ऑफ वर्टिब्रल बॉडी मोशन। जहां वर्टिब्रल बॉडी जाएगी
अब मैं राइट पे रोटेट करता हूँ ना, स्पाइस प्रोसेस जो है लेफ्ट पे चला जाता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं स्पाइस प्रोसेस को देखूं, मुझे ये देखना है कि वर्टिब्रल बॉडी कहाँ पे गई है। कपल्ड मोशंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं। देखिए अगर आप पैसे देंगे और नहीं भूलेंगे तो फिर मैं एंड वाली स्लाइड प्ले करता हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को ना, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें। कपल्ड मोशंस क्या होते हैं? लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और एक मोशन के साथ जो दूसरा मोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कपल्ड मोशन। नॉन कपल्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन बैक पोजीशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन बैक का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकली कोई भी जॉइंट कितना ओपन हो सकता है, दोनों जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं वो कितना फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, कॉल्ड एज ओपन बैक पोजीशन। पूरी स्पाइन पे एक्सेप्ट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट C0 C1 एंड द सैक्रोइलियक जॉइंट, ये दो एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा बाकी पूरी स्पाइन पे ओपन बैक पोजीशन है स्लाइड फ्लेक्शन, थोड़ी सी फ्लेक्शन ऐड कर दें, चाहे वो 5 डिग्री करें, 10 करें या 15 करें, आपकी अपनी मर्जी है। दैट विल बिकम एन ओपन बैक पोजीशन। क्लोज बैक पोजीशन, मैक्सिमली कॉन्ग्रुएंसी, मैक्सिमम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो एक्सटेंशन जो है वो होल स्पाइन पे क्लोज बैक पोजीशन है। इन दोनों को अल्टरनेटिवली क्या कहा जाता है, मैंने मेंशन किया है एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। कहते हैं पेशेंट को ट्रीट करना है आपने ओपन बैक पोजीशन में, तो थोड़ी सी फ्लेक्शन इंट्रोड्यूस कराएं और फिर मोबिलाइज करना शुरू करें, ट्रीटमेंट दें। अब मेरा पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं तो आगे झुक ही नहीं सकता, मेरे लिए तो कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो यहां से हिलूंगा ही नहीं। देन दैट विल बिकम एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। वी शुड नो द ट्रीटमेंट प्लेन। अब चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती जाएंगी। सो ट्रीटमेंट प्लेन जो है ये कहता है कि आपने जो ग्लाइड देना है वो ट्रीटमेंट प्लेन पे देना है। एक रोड है जिसके ऊपर आपने गाड़ी चलानी है, जो मोबिलाइजेशन की आपकी ड्राइव है वो इसके ऊपर होगी, और नॉर्मली कनकेव बोनी पार्टनर जो है उसके ऊपर बड़ा होता है। ये देख लें, ये ट्रीटमेंट प्लेन है, इधर ये ट्रीटमेंट प्लेन है। तो मैं इस बोन को इधर लेके जा सकता हूँ, इस बोन को इधर लेके जा सकता हूँ। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? जो भी कनकेव बोनी पार्टनर है इसका प्रिंसिपल ये है, दोनों जो कनकेविटीज हैं या मार्जिन्स हैं उससे लाइन आप ड्रॉ करें इससे इस तक और वो ट्रीटमेंट प्लेन बन जाएगा। अगर ये और ऐसे ही होती तो फिर ट्रीटमेंट प्लेन ऐसे बनना था और मूवमेंट मुझे ऐसे परफॉर्म करनी थी। कनकेव बोन के साथ रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। इसको मैं आगे जरा मजीद हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएंगे तो बता देंगे कि कैसे रखना है। स्पाइन पे जो है वो रूल जो फॉलो होता है दैट इज कनकेव ऑन कन्वेक्स, और इस रूल को भी हम देख लेते हैं कि क्या बनता है ये। अच्छा, रूल सिंपल जो है वो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना जैसे मैंने रखा, ठीक है। अब आपने अगर इस हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्जर्व कि आपकी जो फिस्ट है वो नीचे की तरफ आती है। सो व्हेन द मूविंग बोन इज कन्वेक्स, मूविंग बोन इज कन्वेक्स एट द एंड जहां पे जॉइंट बन रहा है, तो ग्लाइड विल रिजल्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बोन मूवमेंट। बोन ऊपर जा रही, ग्लाइड नीचे हो रहा है। ग्लाइड विल बी गिवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द बोन मूवमेंट। बोन ऊपर जा रही है और ग्लाइड नीचे हो रहा है। But now consider this concave bony partner to be moving, and if the concave bony partner is moving, तो जिस साइड पे बोन जा रही है उसी साइड पे ग्लाइड हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं concave का ग्लाइड सेम डायरेक्शन पे दें अगर आप concave बोन को मूव कर रहे हैं, और अगर आप convex बोन को मूव कर रहे हैं तो ग्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में दें। यानी कि अगर फर्ज कर लें, अज्यूम करते हैं कि मैंने फ्लेक्शन बढ़ानी है तो मैं कहता हूं कि एंटीरियर ग्लाइड दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एंटीरियर ग्लाइड दें, तो एक्सटेंशन बढ़ानी है तो मैं पोस्टीरियर ग्लाइड दूंगा। ये कनकेव का रूल अगर हो गया तो रिवर्स हो जाएगा कन्वेक्स के लिए। जब फ्लेक्शन बढ़ानी होगी तो फिर उसको पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। ट्रैक्शन किसे कहते हैं? पुलिंग अपार्ट, ऐसे ही है ना। दो बोन्स को आपने पुल किया, एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन।
तो ये राइट एंगल पे दी जाती है ट्रीटमेंट प्लेन के। ट्रीटमेंट प्लेन ऐसे पड़ा तो वर्टिकल पुल ऐसे लगेगा, ट्रीटमेंट प्लेन ऐसे पड़ा था तो पुल ऐसे लगेगा और ट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ट्रीटमेंट प्लेन यूं पड़ा तो ट्रैक्शन उस डायरेक्शन में हो जाएगी, परपेंडिकुलर वर्टिकल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, आपने ट्रीटमेंट प्लेन के राइट एंगल पे या वर्टिकली देना। ये ट्रीटमेंट प्लेन था तो राइट एंगल पे आपने दिया, दिस इज ट्रैक्शन। ओवर हियर ये है, ये ट्रीटमेंट प्लेन है तो इसको इस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, इस बोन को इधर मूव करेंगे तो ये ट्रैक्शन हो जाएगी। व्हाई वी वांट टू गिव ट्रैक्शन? जब मैं चाहता हूं कि दो बोन्स आपस में ऐसे ग्लाइड करें या स्लाइड करें तो मैं ये चाहता हूं कि वो रगड़ ना खाए, इसलिए मैं उनको पहले थोड़ा सा सेपरेट करता हूं और फिर मैं उनको ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होंगी तो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगी और इंजरी के चांसेस ज्यादा। तो स्पाइन पे बहुत इजी है, स्लाइड फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे और हमने मोबिलाइज करना शुरू कर देना। कंप्रेशन अप्रोक्सीमेशन स्ट्रेट अवे, दो बोन्स के अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। और जॉइंट कंप्रेशन जो है वो आप समटाइम इस्तेमाल करते हैं। अगर जॉइंट में कंप्रेशन है और पेन हुआ तो मुझे सोचना चाहिए कि ओके इट इज अ जॉइंट प्रॉब्लम। जॉइंट पे वजन पड़ता तो पेन हो रहा मरीज को तो जॉइंट का प्रॉब्लम है। अगर जॉइंट पे वजन हटाने से पेन ठीक हो रहा है फिर भी जॉइंट का प्रॉब्लम है। और अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो फिर जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ग्लाइडिंग जो है ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल आपने देनी है तो वो ग्लाइड होगी, और अगर आप ट्रीटमेंट प्लेन से परपेंडिकुलर जाएंगे या राइट एंगल पे जाएंगे वो ट्रैक्शन होगी। आप किसी भी पेशेंट में डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूरी स्पाइन पे एक ही रूल फॉलो होता है, कनकेव ऑन कन्वेक्स। तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन लिमिटेड है उसी डायरेक्शन में आपने ग्लाइड देना है। फ्लेक्शन नहीं हो रही तो आगे ग्लाइड देना है, एक्सटेंशन नहीं हो रही तो रिवर्स ग्लाइडिंग करनी है। अब रिवर्स ग्लाइडिंग के लिए क्या है? एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए नीचे वाले वर्टिब्रा को मोबिलाइज करना, फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए उसी वर्टिब्रा को मोबिलाइज करना है आगे की डायरेक्शन में, और एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए नीचे वाले वर्टिब्रा को आगे की डायरेक्शन में मोबिलाइज करें। तो रिलेटिव मोशन क्या होगा? इट विल बिकम एक्सटेंशन। अगर मैं नीचे वाले को आगे करता हूं और ऊपर वाला पीछे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन। और अगर मैं ऊपर वाले को आगे लेके जा रहा हूं और नीचे वाला पीछे जा रहा है तो फिर ये फ्लेक्शन मान लें। इसको कनकेव कन्वेक्स रूल बस ध्यान में रखें, स्पाइन पे एक ही रूल फॉलो होता है। कैल्टन-मॉन और मेटलैंड, ये दो तरह के लोग हैं जिन्होंने मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स दी हैं। हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि लोग कैल्टन-मॉन की ग्रेड्स को फॉलो करें, वो इजी हैं परफॉर्म करने के लिहाज से। नॉर्मल ग्रेड्स क्या है मूवमेंट के? किसी भी मूवमेंट में इनिशियली देयर इज अ स्लैक, ढीलापन होता है। किसी भी रेंज ऑफ मोशन के शुरू में एक ढीलापन होता है जिसको स्लैक कहते हैं। फिर आपके पास मूवमेंट जैसे जैसे होती जाती है, जो पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो टाइट हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैक टेकन अप। और इसके बाद जो आपके पास फर्स्ट स्टॉप आता है नॉर्मली, दैट इज योर टर्मिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। तो मैंने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म की और यहाँ पे ये इनिशियली स्लैक था, फिर वो टेंशन डेवलप हुई, स्लैक टेकन अप होता रहा, एंड यहाँ पे आके मेरे पास पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गया। अब पैसिवली मैं दबाता हूँ तो मेरा हाथ आगे जाता है। इसी तरीके से स्पाइन पे आप फ्लेक्शन करेंगे, पैसिवली जब आप ओवर प्रेशर देंगे तो क्या होगा? मूवमेंट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी आपकी, और वहां पे आप हैंड फील भी दे सकते हैं। इसको हम लूजनिंग भी कहते हैं इनिशियल फेज को, दैट वन इज आल्सो कॉल्ड एज टाइटनिंग, और इसको हम स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो हम मोबिलाइजेशन में करते हैं। आप दो वर्टिब्रास, इसको आप मूव करना चाहते हैं एंटीरियर डायरेक्शन में, आपने इसको मूव किया आगे। इनिशियली आपको बहुत फ्रीएस्ट मूवमेंट मिलेगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी जब आप इसको आगे दबा रहे होंगे, तो दैट विल बी ग्रेड वन। जब और ये स्लैक जोन होगा, जैसे ही आपको प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टेंशन मिले, यानी कि जिस जैसे आप आगे दबा रहे हैं उस तरीके से टेंशन इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्लैक टेकन अप। और जहां पे मार्क्ड रेजिस्टेंस आएगी, आपको लगेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है, इतना आगे मैं लेके गया हूं तो अब जरा मुश्किल हो रही है, दैट विल बी योर फर्स्ट स्टॉप।
वो उससे आगे आगे सारा का सारा आपका स्ट्रेचिंग जोन आ जाता है। उससे पहले जो है वो आपके पास नॉन स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन था और इसके बाद आपके पास स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन है, और ये आगे और क्लियर हो जाएंगी कि इनका मतलब क्या है। अब इसको अगर देखें नॉर्मल में ट्रांजिशन जोन के बाद जो है वो स्ट्रेचिंग आती है, और हाइपोमोबिलिटी में ट्रांजिशन जोन जो है वो कितना पीछे मूव कर गया। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या था? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। तो यहाँ पे हुआ और फर्स्ट स्टॉप भी पहले ही आ गया, उसका फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे है और कितनी रेंज के बाद आता है। और हाइपर मोबिलिटी में देखें रेंजेस एक्सट्रीम पे जाती हैं और फिर आपके पास फर्स्ट स्टॉप आता है। हाउ टू असेस द क्वांटिटी? मेजरिंग रोटेटरी मूवमेंट विद अ डिवाइस। अब डिवाइस हो सकती है गोनियोमीटर, रूलर, कोई अदर डिवाइस हो सकती है। आप स्पाइन पे कह सकते हैं कि मैंने मोशन को मेजर करना है, तो नॉर्मली स्पाइन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक मीटर होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। किसी ने कभी देखा उसको? ओके, उस मीटर का एकदम से मेरे ध्यान से नाम निकल गया, लेट मी रिकॉल दैट। सीआरएम डिवाइस भी उसे कहते हैं, ठीक है, और इंक्लाइनोमीटर भी उसे कहते हैं, ठीक है। इंक्लाइनोमीटर, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो जरा कॉस्टली डिवाइस है, मेरे पास पड़ी भी थी, लेकिन आई हैव गिवन टू रिसर्च प्रोजेक्ट, तो मैं लेके नहीं आ सका, अदरवाइज मैं आपको जरूर दिखाता कि वो कैसे हैं। लेकिन आपके लेवल पे आसान तरीन तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं ऐसी चीज दिखाता हूँ जो आप परचेज नहीं कर सकते या आपको मिलती नहीं है, तो उसको दिखाने का फायदा कोई नहीं है। आपके लेवल पे एक बात याद रखें, टो टचिंग कराएं। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा जो यहाँ पे कराए, कोई भी डाइस पे आना चाहिए मेरे साथ। यार तुम लोग तो कसम से बिल्कुल इतने रिलक्टेंट हो। जब तक आप बेटा कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप इस फोबिया को ओवरकम नहीं करेंगे कि ये हम कैसे करेंगे, ये मुश्किल काम है, या मैं ऑडियंस को कैसे फेस करूं। जस्ट लुक एट मी, मैं आप लोगों को फेस कर रहा हूँ। मैं कभी मिला भी नहीं आप लोगों को, जानते ही नहीं कौन है आप लोग। मेरे सामने आप 1000 बंदा खड़ा करते हैं, मुल्तान में जलसा कराने में कर रहा हूँ। यही लिटरली आपको प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। आप कोई काम कर रहे हैं, आप चलते नहीं आगे पीछे रोड पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, मेल्स भी होते हैं वहाँ पे, फीमेल्स भी होती होंगी, बातचीत चल रही होती है सबसे, भाई ये दिखा दे, भाई वो दिखा दे। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन या हिंड्रेंस नहीं आती स्टूडेंट्स की, स्पेशली फीमेल्स की। तो क्लासरूम में या सेशंस में क्यों आती है? सॉरी, ओके, हम क्यों कर ले, ये एक्टिवली स्पाइनल फ्लेक्शन परफॉर्म करें, दोनों हाथ से जमीन को लगाने की कोशिश करनी है। लेट्स से यही करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट है जिसकी एक्टिव जो है फ्लेक्शन यहाँ तक हुई, मैं इनकी फिंगर टिप्स से लेके यहाँ से लेके और जमीन तक का लेवल जो है उसको मेजर कर लूंगा, तो ये मेरी इनकी स्पाइनल रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन की आ गई। इसी तरीके से जब ये ऐसे हाथ रख के एक्सटेंशन करेंगे नीज को बेंड किए बिना, तो फिर जो है वहां से लेके डिस्टेंस टू द फ्लोर मैं मेजर करूंगा, वो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से साइड बेंडिंग हो जाएगी, और रोटेशन ऐसे जो, ठीक है, रोटेशन जो है वो गोनीमीटर के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। जी सॉरी, लास्ट लिखनी है, एक्सप्लेन करूं ये क्या करना? ओके, उसी टाइम कहते थे, अब वैसे हम बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। जब मैं किसी भी पेशेंट के वर्टिब्रा को प्रेस करके मूव करता हूं आगे की तरफ, तो इनिशियली मुझे कम रेजिस्टेंस मिलती है, वो स्लाइटेस्ट मूवमेंट होगी 1 मिलीमीटर की या 2 मिलीमीटर की। मैं इसको प्रेस किया, दैट इज स्लैक जोन, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई मुझे, इसीलिए मैंने मूव कर लिया। उसको मैं थोड़ा सा और दबाया आगे, तो मुझे प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मिलेगा। मींस के मैं जैसे जैसे आगे दबा रहा हूँ रेजिस्टेंस उस तरीके से बढ़ रही है।